हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आज जो उसने हमें ये नया दिन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब तक उसने हमें संभाल के रखा इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। जिंदा परमेश्वर की हम आराधना और स्तुति करेंगे। हालेलुया।
चुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। Thank you, Jesus. Hallelujah. Higher than the mountain that I face, stronger than the power of the grave, constant through the trial and the change. One thing remains, just one thing remains. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it
never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love, yes Lord. Higher than the mountain that I face, stronger than the power of the grave, constant through the trial and the change. One thing remains, yes, one thing remains. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. On and on and on and on it goes, for it overwhelms and satisfies my soul, and I never ever have to be afraid. Yes, one thing remains, one thing remains. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid, there's nothing that can separate my heart from your great love. In death and in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid, there's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. On and on and on and on it goes, for it overwhelms, satisfies my soul, and I never ever have to be afraid. 'Cause one thing
Praise the Lord. परमेश्वर का नाम की महिमा हो। इस हफ्ते के नया दिन में हमारे जीवित परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए स्वर्गीय पिता में सहायता दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता है। इन दिनों में परमेश्वर का वचन के भविष्यवाणियों का पूर्तिकरण होते जा रहा है। तो परमेश्वर यहोवा ऐसा बातें करता है। एजेकिएल के पुस्तक में 29वां अध्याय का 39वां अध्याय का 29वां वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा ऐसा कहता है, इस्राएल की गृहों में मेरे आत्मा को उंडेल दिया गया है। इन्हीं उसके बाद वो लिखा है, उनका जो मुख है परमेश्वर से और हमसे वो छुपाएगा नहीं करके बताया गया। इस वचन हिंदी में हम एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। 39:29 एजेकिएल। हमारे जीवित परमेश्वर आज भी जिंदा है करके वचन से, पवित्र बाइबल से हमें पता चलता है। पढ़िए 29:29। और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ लूंगा। हाँ, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। आमीन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। तो परमेश्वर अपना जो देखना है, अगर किसी व्यक्ति किसी के और देखता है तो उनके सामने ही अपनी चेहरा को देखता है। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर नजरिया अपने लोगों के ऊपर परमेश्वर रख चौड़ाए करके यहाँ पर लिखे गया है। योवेल के पुस्तक में 2 अध्याय की 28वें वचन में भी इस बातों को आपको देखने को मिलेगा। योवेल का पुस्तक 2 अध्याय का 28वां वचन थोड़ा पढ़िए। हालेलुया। उन बातों के बाद मैं हाँ। सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत्य काल में परमेश्वर का आत्मा हर एक प्राणियों के ऊपर, मतलब जो जीवित परमेश्वर के संतान है उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उंडेल देगा। और मनुष्य, बच्चे, बेटे, बेटियां भविष्यवाणी करने के लिए करने वाला है करके योवेल का पुस्तक में लिखा गया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता है। इस अंधकार की ओर दुनिया जा रहा है। आइजैक न्यूटन, हम सब जानता है, आइजैक न्यूटन ने एक भविष्यवाणी करके भी गया है। वो वचन से, बाइबल से पढ़ने वाला एक व्यक्ति था। वचन में से सारे बातों को सीखता था बाइबल खोल करके। उन्होंने ऐसा बताया 2060 तक आएगा, तब तक दुनिया का कुछ ना कुछ बड़ा सा समस्या होने वाला है। ये अंत की ओर और बड़ा सा एक युद्ध लड़ाई के और ले जा रहा है 2060वां साल में। अभी 2023वां साल चल रही है। आगे जाकर के अभी समझो 30 या 40 साल और बाकी हो सकता है मेरे ख्याल से। इसके अंदर ही अंदर
इस धरती पे कुछ ना कुछ चल सकता है। अंत्यकाल जो बताया गया, इस अंत्यकाल में है हम, लेकिन उस समय से भी पहले कभी भी यीशु मसीह आ सकता है। उसके लिए कोई समय और उसके लिए कोई घड़ी हमारे सामने नहीं रख छोड़ा है परमेश्वर ने। देखिए, हम हमेशा परमेश्वर के सामने तैयार होने का है, तैयार होके रहना है, शुद्ध करना है। जो प्रकटीकरण पुस्तक में लिखा गया है, जो कोई पाप करता है करने दो, जो अशुद्ध होता है वो अशुद्ध होने दो। तो ये वचन में से हमको समझ में आता है, मैं जल्दी ही आने वाला हूँ करके जो गया परमेश्वर के पुत्र यीशु, यहाँ पर हमें बताया गया। हमें हम अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने आप को पवित्रताई में भरपूरी से रखना है करके वचन हमसे बातें करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता है। ये आज का दिन हमारे परमेश्वर हमसे बातें कहने वाला है, हमसे सुनाने वाला है वचन से भी। पास्टर जी हमारे बीच में है, पास्टर विवेक क्लरिकल हमारे पास है। वचन से थोड़ा सा 10 मिनट या कुछ उनसे मिलना चाहता है, वो हमको मिलेगा, इसलिए मैं उनको भी समय दिया है। प्रभु हम सबको आशीष करे। और ये अंत्यकाल के बारे में मैं बोल रहा था, बहुत सारे वचन हमें पढ़ने को मिला था और बहुत सीखने को मिलता है। इस सारे बातों में से प्रभु परमेश्वर को हमसे एक बात बताना है, जो बाइबल में लिखा गया उस सारे बातों को पूरी होने वाला ही है। आमीन, हालेलुया। एजेकियल की पुस्तक में भी और दानियल का पुस्तक में सारे बातों को, जो होने वाला बातों को परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा हमें बताया गया है। इस वचन में स्पष्ट रूप में सारे बातों को लिख गया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। दुनिया ऐसा अपना मनमानी के लिए, धन दौलत कमाने के लिए इस धरती पे मेहनत कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ाई करते रहता है और पैसा कमाने के बड़ा सा गवर्नमेंट भी ऐसा सब कर रहा है। हालेलुया। एक जातियों को नीचा करने के लिए कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह ने बताया गया था, अंत्यकाल में जातियों से और देशों से लड़ाई होगा, लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत है। इसका मतलब अंत नहीं हुआ है। वर्ल्ड वार पहला हुआ, दूसरी हुआ, अभी तीसरी कब होने वाला है हमें नहीं पता है। तभी उस जमाने में रहने वाला सोचा रहेगा, देखिए अंत्यकाल हो गया, दुनिया खत्म होने वाला है। जापान में जब जो एटम बॉम्ब गिरा था, उस समय पर लोग समझा रहे अंत्यकाल हो गया, दुनिया खत्म हो गया, ऐसा भी कोई सोच करके मर भी गया रहेगा। लेकिन उसमें परमेश्वर का योजना था, इस्राएल की राज्य को, देश को जन्म देने का एक समय परमेश्वर ने चुन लिया था। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना चुपचाप पूरा दुनिया को कंट्रोल करता है। जो भी घटना इस धरती में होता है, सारे बातों परमेश्वर के ओर से ही होता है, परमेश्वर अनजाने से नहीं होता है। हालेलुया। सब कंट्रोल परमेश्वर का हाथों में है। इस्राएल में जो ईस्टर्न गेट है उसको बंद रखा है, बहुत जातियों ने उसको खोलने के लिए, यहूदी लोग भी खोलने के लिए कोशिश किया, लेकिन जो वचन में परमेश्वर ने बताया गया, उस गेट से सिर्फ और सिर्फ यहोवा प्रवेश करने वाला अंत्यकाल में। आमीन। अंत्यकाल में यीशु मसीह आएगा
यीशु मसीह ही है यहोवा परमेश्वर। वो युद्ध लड़ने के लिए, प्रवेश करने के लिए द्वार, वो ईस्टर्न गेट है। हमें इस वचन में एकदम स्पष्ट में लिखा गया है। बाइबल जब भी हम पढ़ेगा तभी इसके बारे में हमें समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो इसमें इस एक और बात बोलना चाहता है, इस अंत्यकाल में हमारे और परमेश्वर क्या बोलता है। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तब से उनका नाम पुस्तक में लिखा जाता है। स्वर्ग में पुस्तक खुला जाता है, इस पुस्तकों में उस व्यक्ति का नाम भी लिखा गया है। वैसा ही नया जन्म पाने के बाद हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। तो जीवन की पुस्तक खुलता है उस समय पर। जीवन की पुस्तक में जिन जिन का नाम नहीं है उन्हें आग की कुंड में डाला जाएगा। ये जीवन की पुस्तक के बारे में, यहोवा के पुस्तक के बारे में बाइबल में बहुत जगह पर हमें देखने को मिलता है। मूसा नबी ने होरेब के पर्वत के ऊपर परमेश्वर से विनती प्रार्थना कर रहा था इस्राएली लोगों के लिए। उस समय पर मूसा ने बोला, मैं अगर इन लोगों को आप नष्ट करेगा तो मेरा नाम आपकी पुस्तक में से मिटा देना। तो उन्हें बराबर से पता था एक पुस्तक में इस्राएल के लोगों का, हर एक व्यक्तियों का नाम लिखा गया है। तो परमेश्वर बहुत सारे बातें जगह पर ऐसे बताया है, जो कोई मुझसे मेरा आज्ञा को पालन नहीं करेगा उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक से मिटा दूंगा करके, मिटा करके हालेलुया उन्हें नरक की ओर डाला जाएगा। प्रकटीकरण पुस्तक का 20वां अध्याय का 15वां वचन में ऐसा लिखा है, जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं लिखा गया है उन सभियों को डाल देगा आग की झील में, आग की कुंड में। हालेलुया, आग के तालाब में। जैसे पानी का तालाब होता है वैसे आग उबलते हुए, जलते हुए आग के अंदर डालने वाला है करके वचन में लिखा है। हालेलुया। हम कितना डरना चाहिए, हम कितना डर के जीवन अपना आगे बढ़ाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते में हमने वचन पढ़ा था, परमेश्वर हमें हर वक्त में देखता है। परमेश्वर को छोड़कर हम कहीं नहीं छुप नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का आंखों के सामने सारे बातें नंगा जैसा दिखाई देता है, कुछ भी नहीं छुपा सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर को मैं इस वचन के कारण धन्यवाद देता है। आप सभी को प्रभु आशीष करे। आगे थोड़ा समय प्रभु का दास हमसे वाचक से हमें उत्साहित करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आवाज़ है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया मुझे इस कलीसिया में फिर से एक बार खड़ा होने के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका 7वां वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या बोलता है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें क्या होगा? दिया जाएगा। ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम क्या करोगे? पाओगे। हालेलुया। आगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे लिए
खोला जाएगा। ऐसी कई चीज़ें हैं हमारे ज़िंदगी में कि हम लोग मांग तो लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है हमें मांगना क्या है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम मांगने के विषय में हम प्रभु के पास आते हैं और बहुत दिल से हम सोचते हैं कि प्रभु हमारा ये मांगना जो है इसे पूरा करेगा, और ये हम उसके सामने रखते भी है। और जब हम सोचते हैं कि ये हमने मांगा है और कई समय के बाद भी देखते हैं कि वो हमारा प्रार्थना का फल हमें नहीं मिल रहा है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमने मांगा है और बहुत सारी चीजें मांगा है, लेकिन ये मांगने के पीछे हमें जानना जरूरी है कि हर मांगने के पीछे एक कॉस्ट होता है, एक मूल्य हमें देना पड़ता है। हालेलुया। मांगने के पीछे एक मूल्य है, और मांगने के साथ साथ क्या होता है कि वो मांगने वाले हर वो चीज हमारे जो जगह है, जो हमारे हृदय के अंदर या फिर हमारे लाइफ के अंदर, उन जगह को क्या करता है, वो घेर लेता है। तो कोई भी चीज हम मांगते हैं तो वो हमारे जीवन में आके वो घेर लेगा। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे कि वो मैंने मांगा है तो ये मेरे जीवन में आ जाएगा, तो ये मेरे को फ्री में मिलने वाला है। इस संसार में उद्धार के अलावा, इस संसार में उद्धार के अलावा कुछ भी चीज आपको मुफ्त नहीं मिलता है। हालेलुया। कोई भी चीज मुफ्त नहीं है, सब चीजों के पीछे कुछ ना कुछ मूल्य है। यीशु ने हमारा हर चीज जो हमने मांग रहे, हमको जो मिलना चाहिए, हर वो चीज के लिए उसने क्या किया, उसका मूल्य चुका दिया। कैसे चुकाया? अपने लहू को बहाकर। और वो क्रूस पर जब वो लहू बहाया तो उसने कहा कि ये सब कुछ पूरा हो गया। हालेलुया। क्या किया? सब कुछ पूरा हो गया। तो आज हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कई बार कई चीजें मांग रहे हैं, लेकिन हमारा उत्तर नहीं आ रहा। हालेलुया। और ये उत्तर नहीं आने की वजह से कई लोग क्या है, निराश, एक निराशा की जिंदगी जी रहा है। और मांगना जो है, ये मांगने के विषय में मैंने कुछ समय पहले भी आप लोग को बताया था कि मांगना सिर्फ जो है प्रभु का प्रभु के पास हमें बैठकर उस योजना में हम जब मांगते हैं, यानी हम उसके लिए तैयार है कि नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलोगे मुझे प्लेन चाहिए, अगर आपको प्लेन चाहिए, आप प्लेन ले तो लोगे, लेकिन प्लेन रखोगे किधर? हालेलुया। दूसरी बात, प्लेन आप कैसे चलाओगे? प्लेन चलाने के लिए आपको वो चलाना आना भी चाहिए, उड़ाने आना चाहिए ना, बराबर। तो जो चीज हम मांग रहे हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग कुछ भी मांगते हैं, उनके हिसाब से बाहर मांगते हैं, उनको पता नहीं कि हम क्या मांग रहे हैं, और वो मांगने की वजह से वो उनके जीवन को निराशा में भी लेके जा सकता है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसा चीज, दुकान जाते हैं, हम कभी भी कुछ चीज सामान लेने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पर पहले उसको, वो चीज को देखते हैं, हमको पसंद आने के बाद हम उसको क्या करते हैं, ले रहे ना, खरीदने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका क्या पूछते हैं, उसका प्राइस कितना, उसका मूल्य कितना है। और जब उसका मूल्य हमें पता चलता है कि इतने का है, तो हम उसको अच्छे से परखते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, ले लेते हैं। लेकिन अगर वो हमारे लिए नहीं है, फिर भी हमने उसको लेके आया, जैसे कि हम लोग समझो कोई भी हम लोग समझो एक शर्ट खरीद लिया, टी शर्ट खरीद लिया, या कुछ भी चीज़ ऐसा पैंट खरीद लिया, वो हमने पैसा देकर खरीद लिया, लेकिन हमारे को वो पहनने को नहीं आ रहा। हमारे साइज से बड़ा हो सकता है, साइज से छोटा हो सकता है। हालेलुया। क्या करोगे? क्या हमने मांगा वो चीज जो है, जिसका मूल्य देकर भी वो हमारा योग्य नहीं है। हालेलुया। काफी बार ऐसे होता है कि हम लोग कुछ भी चीज उठा कर ले आते हैं, और वो ले आने के बाद हमको पता चलता है कि वो हमारे लिए है ही नहीं, वो पहन ही नहीं सकता है, या तो एकदम छोटा है या तो एकदम बड़ा है। हालेलुया। तो जो हमें पता है कि ये चीज लेने से ये सही रीति से मेरे जीवन में कार्य करेगा, तो मुझे क्या करना है, उसको पहले परखना पड़ेगा कि मैं क्या मांग रहा है। कई लोग तो उपवास भी लेते हैं कुछ चीज़ों के लिए। मैंने तो कई लोगों को ये कहा है कि उपवास हम कुछ चीज़ों को पाने के लिए नहीं करते, हम आत्मिक बढ़ोतरी के लिए करते हैं। हालेलुया।
हम लोग किसके लिए करते हैं? आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। कई लोगों का ये दिमाग में बैठा है कि ये एक मन्नत की तरह है कि वो उपवास लेकर बैठेंगे और वो सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिलेगी उपवास करने से, मुझे घर मिलेगा उपवास करने से। तुम आत्मा में बढ़ते हो जब तुम क्या करते हो? उपवास करते हो। तो ये भी क्या है कि ये एक गलत तरीका है मांगने का। मांगने का सही तरीका ये है कि प्रभु के चरणों में हमें बैठकर हमें उस चीज़ों को जानना पहला ज़रूरी है, उन चीज़ों को परखना ज़रूरी है। एक मोबाइल भी लेने के पहले हम लोग 10 मोबाइल के बारे में खोज करेंगे कि हमको क्या लेना है, कैसा लेना है, कौन सा लेना है। बराबर है ना? हालेलुया। तो कोई भी चीज़ के पीछे हम लेने से पहले 10 बार सोचते हैं हमें ऐसा लेना है, क्योंकि हम अगर गलत चीज को लेके आए तो वो लेने के बाद हमें क्या होगा? पछताना पड़ेगा। इसीलिए हमें ये वचन बहुत साफ रीति से, ये वचन जो है, कई लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर तूने तो कहा मांगने से तुझे मिल जाएगा करके, इसके लिए मैं मांग रहा हूं। लेकिन क्या मांग रहा है? हालेलुया। जो मांगना है वो तरीके से मांगना बहुत जरूरी है। आज हमारे जीवन में कई चीजें ऐसा है कि कुछ लोगों के भी हमारे जीवन में आने के वजह से हमारा जो स्पेस है, जो जगह है, वो भर गया है और इसकी वजह से हम परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम जुड़ नहीं पाते प्रभु से क्योंकि हम लोग ने क्या किया? कई चीजों को उसके अंदर भर दिया है और इस वजह से हम परमेश्वर से जुड़ नहीं पाते। उसके बाद आगे वो वचन क्या लिखा है, पढ़ो। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अर्थ जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है तुम्हारे लिए अच्छी वस्तु देना चाहता है। हम लोग मांगते हैं बुरी वस्तु, इसके लिए परमेश्वर हमारा वो उन बातों को पूरा नहीं कर रहा है जो हमने मांगा है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है। ये वचन बहुत साफ है कि इसके अंदर जिस तरह से लिखा है कि हमने जो उसके अंदर 9वां वचन क्या कहता है, वापस से पढ़ो। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। वो उसको क्या देगा? पत्थर। तो ऐसा हो सकता है कोई इंसान अपने बच्चों को पत्थर देता है खाने के लिए? नहीं होता है। तो यही तरह है कि हम लोग जो है आज मांग रहे पत्थर रोटी के जगह पे, और परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है? रोटी देना चाहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पत्थर मांग रहे। हालेलुया। और उसके बाद दूसरा वचन क्या कहता है आगे वाला? या मछली मांगे तो उसे सांप दे। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या मांग रहे हैं? सांप मांग रहे हैं। इसीलिए प्रभु हमारा उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा जो हमारे लिए नहीं है, वो चीजों को मांगने के वजह से, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? 1 कोरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय उसका 13वां वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। तो परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है, और वो प्रेम करने के वजह से हमें कोई भी बुरा वस्तु नहीं देना चाहता। हालेलुया। कोई भी चीज हमें वो देने से पहले वो हमसे प्यार करता है, और एक पिता भी अपने बच्चे से क्या करता है? प्यार करता है। वो प्रेम करने की वजह से क्या करता है? वो गलत चीजों को नहीं देगा, आपको आशा में नहीं रखना चाहता, आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, ये नहीं। लेकिन अगर आपको देना ही चाहता है तो आपको क्या देगा? वो प्यार से देगा। हालेलुया। वो प्रेम के साथ देना चाहता है। 1 कोरिन्थियों 3:16 क्या कहता है उसके अंदर पढ़ो। 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आगे हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का कौन वास कर रहा है हमारे अंदर? उसका आत्मा वास कर रहा है। आगे यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा
तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? नष्ट करेगा। यानी कि नष्ट करना जो है हमारे हाथ में भी है। हम खुद भी अपने आप को नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का जो मंदिर है हम खुद भी क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। और वो नष्ट करने की वजह से क्या होता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, आपका जीवन में जो आपको आशीष आना चाहिए तो वो आशीष रुकावट बन जाता है। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में हम क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, और इतना मांग रहे हैं कि हमारे जीवन में वो गलत चीजों को मांगने की वजह से क्या हो रहा है, हम अपने आप को नाश कर रहे हैं। हम दरवाजे किसको खोल के दे रहे हैं? शैतान को खोल के दे रहे हैं। हालेलुया। शैतान को दरवाजा खोलकर देने की वजह से क्या हो रहा है कि हम जो आशीष पाने वाले थे वो आशीष के जगह पे क्या आ गया? श्राप आ गया, और वो श्राप हमारे जीवन में भरना शुरू हो गया। हालेलुया। तो वचन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, और जब वचन हमारे अंदर आता है तो हमें सही रीति पता है कि हमें मांगना कैसा है। हालेलुया। आज हम सिर्फ मांगने के विषय में हम देख रहे हैं, लेकिन उसे ग्रहण भी कैसा करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। काफी बार हम मांग के लेके तो आ गए हैं, लेकिन उसको लेना कैसा है प्रभु के राज्य में, वो प्रभु से कैसा उसे लेकर अपने जीवन में रखना है, वो बहुत जानना जरूरी है। कई बार लेकर हम प्रभु से उन 9 वरदान हमारे जीवन में है। सबके पास 9 वरदान है, बराबर। प्रभु को स्वीकार करने के बाद 9 वरदान आ गए, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कई लोग क्या करते हैं? उन वरदानों से क्या कर रहे हैं? लोगों के ऊपर प्रार्थना करने जा रहे हैं, कोई लोगों के जीवन में चंगाई के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे चीजों के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? वो लोग जो है अपने आप में वो लोग एक दिन नीचे गिर जाते हैं। हालेलुया। सब चीजें पा लिया है, वरदाने जो है गिफ्ट है, प्रभु से मांगा है, मुझे चाहिए, गिफ्ट चाहिए, चंगाई का वरदान चाहिए, बहुत सारी चीजों का वरदान चाहिए, सब चीजें उनको चाहिए, लेकिन मिलने के बाद क्या हो जाता है? एक समय के बाद वो लोग क्या हो रहे? गिर रहे हैं। और कई लोग तो आज प्रभु में है भी नहीं, जो एक समय में बहुत बड़े बड़े वरदानों से वो लोग काम कर रहे थे प्रभु में। हालेलुया। और ये चीज नहीं होने की वजह से, इसीलिए हमारे पास ज्ञान ना होने की वजह से, अज्ञानी रहने से, परमेश्वर का वचन का अज्ञान रहने से क्या हो जाता है? वो गलत रास्तों को चुनना शुरू कर लेता है। हालेलुया। वो रास्ते पे चले जाते हैं जहां से उन्हें पता ही नहीं फिर से वापस कैसा आना। हालेलुया। मांगना बहुत आसान है, लेकिन क्या मांगना ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक हमारे अंदर वचन नहीं है तब तक हमें पता नहीं है कैसा मांगना। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर में देगा। मत्ती का सुसमाचार 7वें अध्याय का 7वां वचन से प्रभु का दास ने हमसे बातें किया। क्या मांगना है, क्या प्रभु से हम चाहता है। लोग मांगने को जाता है तो सब लोग क्या मांगता है? हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ये सब बातें मांगता रहता है। लेकिन परमेश्वर और नहीं, तुम्हारे जीवन की बातों के लिए प्रभु बातें करता है। अनंत काल के जीवन के लिए मांगो। आमीन। बाकी सब परमेश्वर देगा। वचन में और एक जगह पर लिखा है, पहले आप क्या करना है? परमेश्वर के राज्य और उसके न्याय को खोजो। आमीन। धार्मिकता को खोजो और परमेश्वर को खोजो। जो मांगना आप चाहता है वो सब आपको मिल जाएगा। आप सबसे पहले सुलेमान ने जैसा मांगा था परमेश्वर से, सुलेमान स्तोत्र बलि किया, हजारों स्तोत्र बलि किया। आमीन। 1 by 1। आज लोग बोलते हैं मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता है। कोटि कोटि बोलने से नहीं होता है। कोटि कोटि एक गिनती का है। या भाई कोटि बोला तो एक ही बार आपने धन्यवाद किया, कोटि नहीं किया। हालेलुया। सलोमोन राजा, जो सुलेमान राजा ने 1000 स्तोत्र और होम बलि करने के बाद परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आया और उसे बातें किया और उसे
बातें करने के बाद पूछा तुम्हें क्या चाहिए, सपना में उसको दर्शन दिया और क्या चाहिए करके उनसे बात किया था। तभी परमेश्वर सुलेमान राजा ने एक बात पूछा, मुझे चाहिए ज्ञान बुद्धि, ताकि आपने इतना जो अनगिनती लोगों से मुझे बातें करना है और उन्हें संभालना है, उनके सामने खड़ा रहना, मैं बालक हूँ ऐसा। देखिए उसके साथ साथ परमेश्वर ने उनसे बात कैसे किया, तुमने शत्रुओं के ऊपर जय पाने के लिए नहीं मांगा और धन दौलत तुम नहीं मांगा, लेकिन मैं इस सारे चीज़ों में तुम्हें देता हूँ। सचमुच में हम क्या मांगना चाहिए। प्रभु के दास की ओर से हमने वचन सुना था और प्रभु हमें आशीष किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेगा और परमेश्वर से मांगते हुए ज्ञान बुद्धि और आनंद काल की जीवन प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा मांगेंगे। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रार्थना करता है प्रभु, आपकी बच्चों लोग हम हैं प्रभु, हमें आशीष और अनुग्रह कर प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दे। जैसे हमने वचन में पढ़ा था, आपकी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रही है प्रभु जी, ताकि हम आपकी और आपके साथ हमेशा हमेशा रह सकता है, आपके नाम की महिमा कर सकता है। हालेलुया। आज जो कोई वचन सुना है, जो कोई प्रभु को आराधना स्तुति किया है, महिमा किया है, सभीयों को आप आशीष करें। जो कोई बीमारी है तो यीशु मसीह के पवित्र नाम से चंगाई कर दो। हालेलुया। जो कोई आर्थिक समस्या में उन्हें भी चंगाई करो, उन्हें भी प्रभु छुटकारा दो प्रभु जी। जो बीमारी दुष्ट आत्मा में फंसा हुआ उन्हीं को भी जल्दी से जल्दी प्रभु आप चंगा करो, छुटकारा दो। यीशु मसीह हमारे लिए जीवित प्रभु है, हमारे लिए आने वाला है और हमारे पापों के लिए क्रूस में मरा है। ये बात सबको समझने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के अलावा कोई रास्ता हमारे जीवन में नहीं है स्वर्ग पहुंचने के लिए। यीशु हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। हालेलुया।